Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had started with lesson 8, Magnificent Mary of your Wordsworth English Reader book. I had written and explained the word meanings and the meaning of phrases for you, and even I had read the lesson for you. Today, I'm going to continue with the reading and explanation. So all of you, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 73. Children, please take out your Wordsworth English Reader book, turn to page number 73 as I'll be continuing with the reading and explanation of lesson 8, Magnificent Mary. Students, I have already explained the word meanings and the meaning of phrases, and today I'll be reading and explaining the lesson to you. So please turn to page number 73. Mary Kom is a name that stands for patience and hard work. All of us have heard about Mary Kom. She is a renowned boxer of India. In spite of facing so many difficulties in life, she achieved success, name and fame. And आज मैरी कॉम को बेटा लोग किस लिए पहचानते हैं? फॉर हर पेशेंस. पेशेंस मीन्स सब्र के साथ, एंड हार्ड वर्क. And children, there's no substitute for hard work. A 5-time world boxing champion, Mary Kom has fought battles not only in the boxing ring but also in a personal life. बेटा 5-time world champion Mary Kom रह चुकी है ना? And इतनी ज्यादा वो इंस्पायर सबको करती है कि उनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है. एंड मैरी कॉम ने बेटा बॉक्सिंग में वन हैज टू फाइट विद द अपोनेंट, इजंट इट? सो उन्होंने खाली बॉक्सिंग रिंग के अंदर ही फाइट्स नहीं की हैं, बट इन अ पर्सनल लाइफ ऑल्सो. उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में शी हैड टू स्ट्रगल अ लॉट टू अचीव दिस सक्सेस. However, Mary overcame all the hurdles and achieved much more than many of us can possibly dream of. लेकिन जितनी भी परेशानियां, कितनी भी मुसीबतें, कठिनाई रास्ते में आई हो, मैरी कॉम सबको पार करते हुए, है ना, सारे हर्डल्स को पार करते हुए आगे बढ़ती गई और सक्सेस के उस मुकाम पे पहुंची जहां हम लोग खाली सोच ही सकते हैं उसके बारे में. एंड शी हैज अचीव्ड व्हाट शी thought of just because of her determination, hard work and patience. Like many other sports person, Mary Kom's success is an inspiration, but it becomes even more meaningful when we consider her background. अब बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं इंडिया के, है ना, लेकिन मैरी कॉम का जो सक्सेस है वो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है और वो हमारे लिए और ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है जब हम मैरी कॉम के बैकग्राउंड के बारे में जाने कि वो किस फैमिली से आई है, किस स्टेट से आई है, कितनी मुसीबतें थी, और उसके बाद भी वो आगे बढ़ती गई. Mary was born on 1st March 1983 in a tribal community in the clashes-ridden state of Manipur. और मैरी जो है उनका जो शी वॉज बॉर्न, उनका जो जन्म है 1 मार्च 1983 को ट्राइबल कम्युनिटी, है ना, आदिवासी कम्युनिटी मणिपुर की, जहां पे आपस में ही सारे कबीले वाले एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे. ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी में उनका जन्म हुआ. हर फुल नेम इज मांगटे चुंगनीजंग मैरी कॉम. उनका जो पूरा नाम है दैट इज मांगटे चुंगनीजंग मैरी कॉम. Her parents were poor farmers and worked hard in the fields. बच्चों, उनके जो पेरेंट्स थे वो पुअर फार्मर्स थे. They were poor farmers who worked hard in fields, जो खेतों में बहुत मेहनत करते थे. As the eldest of her siblings, Mary took care of them from a very young age. और सारे भाई बहनों में मैरी सबसे बड़ी थी और मैरी छोटे से ही अपने सारे छोटे भाई बहनों का बहुत ख्याल रखती थी. सबका ध्यान मैरी ही रखती थी. Moreover, she used to help her parents earn their livelihood by working in the fields and cutting wood after school hours. और अपने भाई बहनों का ध्यान रखने के अलावा
मैरी कॉम अपने पेरेंट्स को भी लाइवलीहुड है ना, लाइफ चलाने के लिए सब लोग कोई ना कोई काम करते हैं, तो मैरी भी अपने पेरेंट्स के साथ खेतों में काम करती थी एंड वो लकड़ी काटने जाती थी आफ्टर स्कूल आवर्स सो दैट कि उनके पेरेंट्स को हेल्प हो जाए. Mary was extremely interested in playing different kinds of sports during her school days. और जो मैरी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती थी अलग अलग स्पोर्ट्स खेलने में during her school days. She initially participated in several athletic competitions but soon took up boxing after being highly inspired by the famous Manipuri boxer Dinko Singh. मैरी को वैसे सारे स्पोर्ट्स एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स में वो बहुत एक्साइटेड रहती थी पार्टिसिपेट करने के लिए, बट वो मणिपुरी बॉक्सर डिंको सिंह से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी और फिर उन्होंने सारे स्पोर्ट्स छोड़ के खाली बॉक्सिंग पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया. However, her father, who was a boxer in his early days, did not encourage her as he considered boxing to be a male sport. और मैरी के जो फादर थे, जो खुद एक बॉक्सर थे अपने यंग एज में, वो उनको जब पता चला कि मैरी बॉक्सिंग में इंटरेस्टेड है, तो उन्होंने कभी भी मैरी को एनकरेज नहीं किया कि बॉक्सिंग वो खेले. वाई? बिकॉज वो पुराने विचारों के थे एंड ही यूज्ड टू थिंक कि बॉक्सिंग जो है खाली मेल स्पोर्ट है, खाली लड़के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. इट इज नॉट मेंट फॉर गर्ल्स. He thought that Mary wouldn't be able to find a suitable groom if she continued boxing. और जैसे सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी करते उनके लिए लड़के लड़कियां ढूंढते, वैसे मैरी के फादर ने भी सोचा कि अगर वो बॉक्सिंग खेलने लग गई है ना, तो फिर उसके लिए लड़का ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा. Despite all objections, Mary continued boxing even though she had no support from her family in the early days. और इतनी सारे objections, her father did not support her, हाँ, फिर भी मैरी ने बॉक्सिंग को कंटिन्यू रखा, जबकि उनकी फैमिली से उनको कोई भी शुरुआती दिन में कोई सपोर्ट नहीं मिला, बिकॉज दे वर अगेंस्ट कि गर्ल कैसे खेलेगी, वो तो मेल स्पोर्ट है. She couldn't even afford proper shoes and sports gear for herself. And सोचो वो इतनी मतलब फाइनेंशियली वीक थी कि वो अपने लिए बॉक्सिंग के शूज और जो स्पोर्ट्स गेयर, जो बॉक्सिंग के लिए ग्लव्स और हेलमेट और ये सब चीजें लगती है जिससे कि जो बॉक्सर है वो सेफ रहे, वो गेयर तक भी उनके पास वो खरीद नहीं सकती थी. शी डिडंट इवन हैव दैट मनी कि वो शूज या गेयर खरीदे. शी ऑल्सो हैड टू हाइड फ्रॉम हर फादर ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशंस. और वो बॉक्सिंग कर रही थी, ये बात उनके फादर को नहीं पता थी. वो छुप छुप के बॉक्सिंग प्रैक्टिस करती रहती थी, बिकॉज शी न्यू कि अगर उनके फादर को पता लगेगा तो ही वुड बी ऑफेंडेड. मैरी कॉम्स कैरियर स्टार्टेड इन द ईयर 2000. अब मैरी कॉम का जो बॉक्सिंग का कैरियर है बेटा, वो कब स्टार्ट हुआ? 2000 से. आफ्टर हर विक्ट्री इन द मणिपुर स्टेट विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप एंड द रीजनल चैंपियनशिप इन बंगाल. और वो कब? जब उन्होंने मणिपुर स्टेट की जो विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप है और रीजनल चैंपियनशिप वेस्ट बंगाल की वो जीती इन द ईयर 2000 में. इन 2001 शी स्टार्टेड कॉम्पिटिंग एट एन इंटरनेशनल लेवल. 2000 तक तो वो स्टेट और रीजनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके जीती, और 2001 में शी स्टार्टेड कॉम्पिटिंग एट एन इंटरनेशनल लेवल. तब वो 2001 में 18 ईयर्स की जब वो हुई तो उन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए तैयारी स्टार्ट की. शी वॉज ओनली 18 years old when she made her international debut at the first आईबा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन. और वो सिर्फ 18 ईयर्स की थी जब उन्होंने पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे आईबा में पार्टिसिपेट किया. इन द यूनाइटेड स्टेट्स विनिंग अ सिल्वर मेडल इन द 48 kilograms वेट कैटेगरी. वो 18 ईयर्स की थी और उन्होंने यूएसए में जो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड हुई थी उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता. और तब लोगों को मैरी कॉम के बारे में पता लगा. मैरी वन द फर्स्ट विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 2001. फिर उन्होंने विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2001 में जीती. In the same year, she won the second position in the Women's World Amateur Boxing Championship in the 48 kilograms category. और उसी ईयर में 2001 में उन्होंने सेकेंड पोजीशन जीती विमेन्स वर्ल्ड एमेचर बॉक्सिंग चैंपियनशिप. बेटा अमेचर
वो होता है जिसमें गेम बिना किसी पैसे के लिए खेला जाता है। एक होता है कि प्रोफेशनली लोग खेलते हैं सो दैट दे अर्न मनी, बट अमेचर मीन्स नॉन प्रोफेशनल, जिसमें कि दे डोंट अर्न एनीथिंग। और वो भी उन्होंने 48 किलोग्राम्स कैटेगरी में, है ना। बॉक्सर्स की जो जब वो बॉक्सिंग करते हैं तो देखते हैं कि इनका वेट कितना है, तो उनका जो अपोनेंट है उसका वेट भी उतना ही होता है। तो शी वॉज प्लेइंग इन द 48 किलोग्राम्स कैटेगरी। She also won the World Championships in the year 2002, 2005 and 2006. उसके बाद उन्होंने फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप 2002, 2005 एंड 2006 में जीती। As a result, she was nicknamed Magnificent Mary. और इसका नतीजा हुआ लगातार वो चैंपियनशिप जीत रही थी तो उनका नाम मैग्निफिसेंट मैरी रख दिया गया। Mary married K. Onlercom in the year 2005. 2005 में उन्होंने K. Onlercom से शादी की and gave birth to her twin sons Rechungwar and Khupniwar in 2007. और 2007 में उनको जुड़वा बेटे हुए Rechungwar and Khupniwar. And Mary Com has another son. उनका इन दो जुड़वों बेटों के अलावा एक बेटा और है, प्रिंस, who was born in 2013. And जब उनके फर्स्ट जुड़वा बेटे हुए 2007 में, she took a break from the game during this period and but after some time she started intense training again. जब उनके जुड़वा बेटे हुए, है ना, तो उनको she was a mother, उनको ध्यान रखने की जरूरत थी अपने बच्चों की, वो भी दो छोटे स्मॉल बेबीज, तो उन्होंने थोड़ा ब्रेक लिया। बट थोड़े ही दिनों के बाद शी स्टार्टेड इंटेंस ट्रेनिंग अगेन। फिर उन्होंने अपनी बहुत ज्यादा इंटेंस मीन्स सारा कॉन्सेंट्रेशन और एनर्जी लगा के उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। शी वॉज ऑल फोकस्ड. She made an impressive comeback by winning the silver medal at the 2008 Asian Women Boxing Championship in India and a fourth successive gold medal at the IBA Women's World Boxing Championship in China. और सोचो उनकी प्रैक्टिस इतनी, मतलब उन्होंने इतनी मेहनत लगाई, उन्होंने इतना जोर लगाया कि उन्होंने एशियन विमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, है ना, 2008 में गोल्ड मेडल जीता चाइना में। एंड उसके बाद फिर उन्होंने 2009 में भी गोल्ड मेडल जीता एट एशियन इंडोर गेम्स इन वियतनाम। एंड उन्होंने इंडिया में पहले 2008 में सिल्वर मेडल भी जीता। ठीक है। Mary Com's success streak continued as she won the gold medal at the Asian Women's Boxing Championship in Kazakhstan in 2010 and at the IBA Women's World Boxing Championship in Barbados. फिर तो मैरी कॉम का जो सक्सेस था वो पीरियड कंटिन्यू होता गया, है ना। उन्होंने 2010 में एशियन विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती। उसके बाद बाराबदोस में भी विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप बनी। शी ऑल्सो वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द 2010 एशियन गेम्स एंड द गोल्ड मेडल इन 2011 एट द एशियन विमेन्स कप इन चाइना। एंड उसके बाद उन्होंने 2010 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता एंड 2011 में उन्होंने गोल्ड मेडल एशिया विमेन्स कप चाइना में जो हुआ था वो भी जीता। Mary Com's determination and willpower could be seen during the London Olympics in 2012 when she did not lose her confidence even when she had to change her category from 48 to 51 किलोग्राम। अब सोचो मैरी कॉम का डिटर्मिनेशन और विल पावर इतना स्ट्रांग था, ये कब देखने को मिला? 2012 लंदन ओलंपिक्स में, जब उनको कहा गया कि वो 48 किलोग्राम्स में बॉक्सिंग करती थी, उनको कहा गया कि अब आपको 48 में नहीं, अब आपको 51 किलोग्राम्स के बॉक्सर से आपको बॉक्सिंग करनी होगी। फाइन। तब this meant that she had to fight against taller and bigger opponents inside the ring. इसका मतलब हुआ कि उन्हें अपने से साइज में बड़े, जो टॉल भी हो, स्ट्रॉन्गर भी हो, अपोनेंट से बॉक्सिंग रिंग में उनको फाइट करनी पड़ेगी। She confidently accepted the challenge. कोई और होता तो घबरा जाता, बट मैरी कॉम ने बहुत कॉन्फिडेंटली वो चैलेंज एक्सेप्ट किया and practiced against male boxers who were taller and had stronger physique than her.
और उन्होंने क्या किया, जब उनको बोला गया कि अब आपको 48 से 51 किलोग्राम्स में बॉक्सिंग करनी पड़ेगी, उन्होंने कॉन्फिडेंटली चैलेंज एक्सेप्ट किया और उन्होंने मेल बॉक्सर्स के संग, वो तो फीमेल के साथ लड़ती थी, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए मेल बॉक्सर्स के संग प्रैक्टिस शुरू की। हर करेज, जो उनसे बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग थे, her courage and hard work paid off when she finally won the bronze medal and became the first Indian women boxer to win a medal at the Olympics. और फाइनली उनकी जो मेहनत थी, है ना, उन्होंने मेल बॉक्सर्स के संग प्रैक्टिस की, जी जान लगा के हार्ड वर्क किया, और वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक्स में जीता. दिस वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर हर. The awards and recognitions for Mary Kom have continued over the years, as she was awarded with the Arjun Award in 2003, the Padma Shri in 2006, the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in 2009 and the Padma Bhushan in 2013. और इसके बाद से तो उनको सारे लोग उनको रिकॉग्निशन मिल गया, सारे लोग उनको पहचानने लग गए और गवर्नमेंट से भी उनको अवार्ड्स मिलने लग गए, है ना. और कौन कौन से उनको अवार्ड्स मिले? शी वॉज अवॉर्डेड विद द अर्जुन अवार्ड इन 2003. अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स के लिए बेटा, ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है, और वो उनको अर्जुन अवार्ड 2003 में मिला. द पद्मश्री इन 2006, द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2009 एंड द पद्म भूषण इन 2013. ये सारे जो अवार्ड्स है ना, और ये बहुत जो एक्सीलेंट किसी फील्ड में लोग करते हैं तो उनको दिए जाते हैं, और ये सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मैरी कॉम ने लिए. She also won a gold medal in the Asian Games in 2014 among many such others in the recent years. फिर उन्होंने 2014 में एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता, और उसके बाद कई सारे ऐसे उन्होंने मतलब अचीवमेंट्स किए रिसेंट ईयर्स में. मैरी कॉम सक्सेस वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क. अब बेटा जितना भी हमने मैरी कॉम के लेसन अभी स्टोरी में इस लेसन में पढ़ा है कि मैरी कॉम का जो सक्सेस था वो खाली किस लिए, उनको इतने अचीवमेंट्स अवार्ड्स और वो जिस सक्सेस पे पहुंची वो किस लिए, बिकॉज ऑफ अ हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन. एक तो बेटा हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एंड यू शुड हैव डिटर्मिनेशन, जो सोच लो कि हाँ ये करना है, फिर जब तक आप अपना एम नहीं अचीव करो आपको पीछे नहीं हटना है, चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए. एंड मैरी कॉम ने भी यही किया, है ना. शी रियली वर्कड हार्ड, है ना. बचपन से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी. शी वॉज नॉट फाइनेंशियली साउंड, शी हैड नो सपोर्ट फ्रॉम अ फैमिली, बट जस्ट बिकॉज ऑफ अ हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन शी kept on moving ahead, है ना. और वो सारे प्रॉब्लम, सारे हर्डल्स पार करके आगे बढ़ती गई बिकॉज शी वॉज डिटरमाइंड, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि मुझे ये करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए. तो हर हार्ड वर्क फाइनली पेड ऑफ. सो कीप इन माइंड कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और अगर आप डिटरमाइंड हो तो फिर आपको आपकी मंजिल पाने से कोई भी नहीं रोक सकता. Her story is significant. Significant means important because she achieved all the accolades against all odds. उनकी स्टोरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उनको इतने सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिला, जबकि उनकी लाइफ ऐसा नहीं कि उनको सब कुछ आराम से मिलता गया, है ना. उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थे, सारी परिस्थितियां उनके अगेंस्ट थी, उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो अपनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क से आगे बढ़ती गई. शी वर्क विथ कंप्लीट डेडिकेशन टुवर्ड्स हर गोल्स, और वो पूरी मेहनत और लगन के संग उन्होंने जो गोल रखा था उसकी ओर बढ़ती गई. एंड फॉट ब्रेवली अगेंस्ट ऑल द ऑब्स्टिकल्स दैट शी फेस, और जितनी भी कठिनाइयां, परेशानी, हर्डल्स लाइफ में आए उन सबको वो पार करती गई बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. एंड शी वॉज पेशेंस ऑल्सो. वो कभी भी, वो एकदम पेशेंट थी, वो कभी भी घबरा ही नहीं, क्योंकि क्या होता है कि अगर जब हम घबरा जाते हैं तो फिर हम कोई काम नहीं कर सकते. तो कितनी भी मुसीबत आए हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. वी शुड हैव पेशेंस, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क का तो कोई बेटा तोड़ ही नहीं है. Thus Mary Kom
has all the qualities of a true sports person. And जिसको भी स्पोर्ट्स में कुछ भी अचीव करना है उनमें ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए कि बहुत आप हारोगे गेम्स बट दैट शुडंट वीकन योर डिटर्मिनेशन, है ना, और उसे आपकी हार को आपको कमजोर नहीं करना चाहिए, है ना। आपका विल पावर अगर स्ट्रांग है और आप में धैर्य है, पेशेंस है कि कोई बात नहीं, हार गया, क्योंकि फेलियर इज दी स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। हम हारेंगे तभी ना हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, इजंट इट। सो जितने भी ग्रेट पीपल हैं सबकी लाइफ में फेलियर्स है ना, सबने फेलियर्स को ओवरकम करके ही सक्सेस को अचीव किया है। तो इफ यू वांट टू बिकम एनीथिंग इन लाइफ तो आप में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। एक तो हार्डवर्क करने के लिए तैयार होना चाहिए एंड यू शुड हैव पेशेंस एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। सो फाइन, with this the explanation of the lesson is over. And that's all for today, children. But please do read this lesson at least 2 times so that in my next video, when I start with the comprehension exercise, you'll be able to understand it easily. So, thank you, children. Have a good day ahead.